guys, welcome back to the channel. I hope you all are absolutely fine and doing well in the market. Guys, today we are going to discuss about a very important video. It's a related topic of how to become a profitable trader. It's a very important and very huge topic, guys. It's a not easy topic. It's not as easy as you think. So please focus on the today's video. If you have a particular time to watch the video, around 10 to 15 minutes you have, then only be here. Otherwise please leave the video guys, बिकॉज आप लोग वीडियो को देखोगे और इसको हाफ स्किप करके जाओगे तो आपको इससे कुछ सीखने नहीं मिलने वाला. मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. एंड गाइज बिलीव मी, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, आई गारंटीड यू विल बी अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर वेरी सून. ओके, so guys, I think let's start the video without wasting any kind of time. But before moving ahead, if you haven't subscribed the channel, then please go and subscribe the channel, because I'm going to provide many more valuable content to you guys. So guys, let's start the video. How to become a profitable trader? It's a very big question mark for the new traders. Okay, all the pros know how to become a profitable trader, but they don't tell you how to become a profitable. They will only provide you knowledge, but they will not tell you some steps which are very important to become a profitable trader. तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोई स्टेप्स है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है इफ़ आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो तो. एंड बिलीव मी, आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस स्टेप्स यू विल कम एंड टेल मी दैट यस सर इट्स हेल्प अ लॉट, बिकॉज मैंने खुद के ट्रेडिंग करियर में ये स्टेप्स फॉलो किए हैं. मैं भी आपकी जैसा ही पहले एक लूज़र था, एक ट्रेडिंग करियर में मेरे को भी काफ़ी अच्छा फेलियर मिला है. बट आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स, आफ्टर रीडिंग अ लॉट्स ऑफ बुक्स एंड गेनिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. एंड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एंड दीज ऑल आर द स्टेप्स विच आई हैव अप्लाइड. ओके, अगर मेरे को ये कोई स्टेप्स दे देता, ऐसा कुछ वीडियो अपलोड करके बता देता ना, तो गाइस मेरी जर्नी काफ़ी छोटी हो जाती थी और मैं जल्दी का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता था. It's not an issue. I'm going to help you. I'm here for you. So let's start the video. So main question is how to become a profitable trader. So guys, there are some steps that how to become a profitable trader. First, we'll discuss about what is trading actually. Okay, we'll discuss about what is trading. There are 3 parts of trading, guys. First is knowledge. Okay, and now what means knowledge? Knowledge means the technical knowledge you have, the fundamental knowledge you have, technical analysis knowledge you have. Like if you have technical analysis knowledge you have, means what? You know the support resistance, trend lines you know, okay, Fibonacci retracement you know, okay, this all is the knowledge. Means how breakout is going to be done, what candlesticks patterns are forming, ये आपको सब पता है. इसका मतलब ये आपको नॉलेज है. Okay, if you are comfortable with the first step, then okay, knowledge, you know everything about the knowledge. Okay, so now let's talk about second step. Second step is execution of knowledge, and this is very important step, guys. Many people have knowledge but they don't know how to execute their knowledge, how to execute themselves. They don't know this. So second step है execution of knowledge. अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो पता है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, एंड नाउ दिस स्टॉक मूव्स, बट इस पे आपको ट्रेड कैसा करना है वो नहीं पता है. तो गाइस, यू हैव टू लर्न दिस. आई एम होपिंग दैट यू हैव नॉलेज, योर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो सक्सेसफुल, एंड in third step also you are going to be successful. Then after that there are going to be some steps which will help you a lot. Okay, so be in the video till the end. This is very important video, guys. This one video can improve your and change your trading career, believe me. So guys, second step is execution of knowledge. means आपको knowledge है, आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, बट आपको उस पर एग्जीक्यूट नहीं करने आता, उस पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने आता. Then this is the second step. So you have to learn how to execute, how the market works. If you have to draw a support resistance in the market and when it breaks, how it breaks, you have to all follow these rules and regulations, guys. Trading is nothing, it's all about the discipline and rules and regulations. And third step is psychology. This is the most important step, guys. This is the most important step. 80% of trading is psychology and 20% is technical analysis and all that fundamental analysis. Okay,
So you have to work on this. If your psychology is weak, then it's very difficult for you. Work on the psychology, read some psychological books. It will very helpful for you. First step is knowledge. I think knowledge, everyone has that knowledge. If you want to become a trader, then I think you have knowledge. Execution of knowledge is very important. I think you have also achieved this second step also. And the main third step is psychology. Man, believe me, if you not perfect in these two and you're perfect in this one now, you can be a successful trader. Okay, so psychology is a very important part in the trading. So let's move ahead. Now I'm going to discuss the steps. Okay, now I'm going to discuss the steps, the mistakes done by new traders. I'm going to share mistakes which I have also made and the new trader also makes when they are in the beginning stage. So guys, आपको मिस्टेक्स नोट डाउन करके रखना है. अराउंड काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स है, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको प्रॉपरली इन्हें समझना है. ओके, फर्स्ट स्टेप पे स्ट्रेटेजी होपिंग. द मिस्टेक नंबर 1 इज स्ट्रेटेजी होपिंग. गाइज, न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी के होप में रहते हैं कि हमें कोई स्ट्रेटेजी दे देगा, कोई हमें अच्छी स्ट्रेटेजी बता देगा. यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी. गाइज, स्ट्रेटेजीज एंड ऑल नथिंग है. ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये इंडिकेटर्स कुछ काम के नहीं है गाइज. इंडिकेटर्स वर्क्स ऑलवेज आफ्टर द प्राइस एक्शन. इंडिकेटर कभी पहले काम नहीं करते. प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Price action, if you know how to trade with the price action, you're a profitable trader. Believe me, you're going to be a profitable trader very soon if you know how to trade on the price action. सो स्ट्रेटेजी के होप में कभी रहना नहीं है कि हमको इसकी स्ट्रेटेजी काम आएगी, उसकी स्ट्रेटेजी काम आएगी. आप पहले प्राइस एक्शन सीख लो. इफ आप प्राइस एक्शन सीखते हो गाइस, तो आप खुद अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है उनको खुद को मालूम है प्राइस एक्शन क्या चीज़ है, प्राइस एक्शन पे कैसे काम करता है, चार्ट कैसे काम करता है, उनको ये सब मालूम है. लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है, तो आप स्ट्रेटेजी के पास जाते हो, आपको कोई स्ट्रेटेजी दे दे, आप वो देखते हो, बड़े बड़े कोर्सेज लेते हो एंड ऑल यू ऑल गो थ्रू वेरी डिफिकल्ट स्टेजेस. आई नो गाइस. तो कैसा रहता है गाइस, इफ कोई बंदा उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है तो क्या होता है, इफ पर्टिकुलर पर्सन इज देयर, सो इफ ही इज मेड हिज स्ट्रेटेजी फॉर हिम, उसने खुद के लिए उसकी स्ट्रेटेजी बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि वही सेम स्ट्रेटेजी आपके लिए भी वर्क करेगी. वो बंदा अलग है, वो बंदा आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उसका माइंडसेट डिफरेंट है, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी डिफरेंट है. तो इट्स नॉट श्योर कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए भी वर्क करेगी. आपका माइंडसेट डिफरेंट है, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर डिफरेंट है, तो आप आपके हिसाब से खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए. और खुद की स्ट्रेटेजी आप कैसे बना पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन. आपको चार्ट ऑब्जर्व करना है, चार्ट पे क्या होता है, कैसे होता है, देन यू हैव टू गो अहेड. ओके, सो फर्स्ट थिंग, स्ट्रेटेजी के ऊपर कभी होप मत करना. स्ट्रेटेजी खुद की बनाओ, दूसरों की स्ट्रेटेजी यूज मत करो, क्योंकि दूसरे की जो स्ट्रेटेजी रहती है उसके बिहेवियर के हिसाब से रहती है. खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर खुद वर्क करो. Yeah, it will obviously going to take a time, but it's a worth it. Okay guys. Now let's talk about the second mistake. Second mistake is trading without knowing the rules of the market. Guys, it's a very basic point. काफी लोगों को मार्केट के रूल्स मालूम नहीं है. मीन्स व्हाट इज द लॉट साइज, व्हाट इज द ऑप्शन, कॉल्स, पुट्स, फ्यूचर्स. They don't know about this. They only know how to trade in the market. They only execute the trades and they trade. Then guys, believe me, it's a very wrong thing. First gain the knowledge, then enter in the market. Otherwise it's going to blow all your capitals. मार्केट को हमेशा समझने की कोशिश करिए. मार्केट के रूल्स क्या है, मार्केट कितने बजे ओपन होता है. आई थिंक ये आपको बेसिक सी नॉलेज आपको मालूम होगी, बट व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स स्मॉल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so let's talk about the third mistake, not expecting the worst. guys, people क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपने एंट्री किया, ये आपका स्टॉप लॉस है एंड दिस इज योर टारगेट. ओके गाइस, दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर टारगेट. ओके, सो आपका जो स्टॉप लॉस है गाइस, ये 3 रुपीज़ का है और आपका जो टारगेट है वो 1 रुपीज़ का है. तो this is the very worst scenario. Means you are not thinking about the stop loss. Yeah, if your 7 rupees का आपका टारगेट है, then it's okay. Then ये वर्स्ट सिनेरियो क्या है, इधर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या नुकसान होने वाला है, आपका 3 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर जाएगा. उससे ज़्यादा आपको कुछ नुकसान होने वाला है क्या, नहीं. सो ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट फर्स्ट. ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट,
कि मैं इस ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है। मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ का है, 1000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ का, इट डजेंट माइंड। मीन्स आपका स्टॉप लॉस 5 रुपीज़ का है और आप वो स्टॉप लॉस देने के बाद आपको दुख नहीं होने वाला है, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट ट्रेड। बट इफ आपका स्टॉप लॉस 10,000 रुपीज़ का है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होने वाला है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, देन गाइज प्लीज कीप दैट ट्रेड, डोंट trade that particular trade. Okay, avoid that type of trading. Okay, so next step is not keeping tracking of news. Guys, not keeping tracking of news, I mean ऐसा मत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा न्यूज़ चैनल के सामने ही बैठे रहो, डोंट डू इट, बट ट्रैकिंग करते रहो न्यूज़ को, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है और वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल और हिला देती है एक्चुअली। आए हो आप लोगों को पता रहेगा निर्मला सीतारमन का जो न्यूज़ आया था उसने कितना बड़ा कैंडल फॉर्म किया था। मीन्स यस, यू कैन बिलीव दैट कितने लोगों के स्टॉप लॉस जस्ट इन सेकेंड्स हिट हुए होंगे। इसलिए ऑलवेज कीप ट्रैक ऑन द न्यूज़। मीन्स बड़े बड़े न्यूज़ पे ध्यान दो। इफ़ आपको न्यूज़ पे नहीं जमता है लाइव मार्केट पे ध्यान देना, तो आफ्टर मार्केट जस्ट मेक अ व्यू ऑन द न्यूज़। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, relaxing post market. This is the very big mistakes done by the beginners. This is the very big mistake, and believe me guys, this fifth point I'm telling you is the very important point. Relaxing post market is the very big mistake. Guys, traders क्या करते हैं, न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्पेशली लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक एंड ह्यूज मिस्टेक। बट इंस्टेड ऑफ यू गाइज ऑब्जर्व एनी प्रो ट्रेडर, बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो सिर्फ मार्केट में, लाइव मार्केट में उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने आते हैं, ना कि एनालिसिस और ना कुछ करने आते। उनका जो एनालिसिस होता है वो पोस्ट मार्केट में ही हो जाता है। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको भी सेम चीज़ फॉलो करनी है। आपको मार्केट जब भी बंद होता है आफ्टर 4 या आफ्टर 3:15, आपको 3:15 के बाद आप जब भी फ्री हो इवनिंग में, एट लेट नाइट, यू हैव टू डू एनालिसिस, यू हैव टू मार्क द लेवल्स, यू हैव टू मार्क द लेवल्स। ओके, you have to mark the levels, how to trade on these, what will be the scenario if Nifty open gap up, what I am going to do if Nifty open gap down, what I am going to do if Nifty open sideways, what I am going to do. And select some stocks, means this stock is on support, so if it take the reversal I will go for it, if it going to break out I will, if it going to break down I'm going to short sell it. so ऐसे एनालिसिस पहले करके रखो, आपके ट्रेडिंग प्लान्स पहले बना के रखो, और जो कुछ नॉलेज आपको गेन करना है आप पोस्ट मार्केट करो। गाइस, पोस्ट मार्केट में रेस्ट कभी भी नहीं करना है, हमेशा पोस्ट मार्केट मेहनत करना है और लाइव मार्केट में रेस्ट करना है। रेस्ट कैसे करना है, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, देन यू हैव टू रेस्ट, बिकॉज एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज आपका टारगेट हिट होगा। ओके गाइस, so let's move about the next steps. Not logging the trades, this is also a very big mistake. Guys, new people क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, if स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, दुखी हो जाते हैं, टारगेट हिट हुआ बहुत खुश हो जाते हैं। इट्स ए वेरी बिग मिस्टेक। आपको क्या करना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना गाइस, तो आपको एक लॉग करना है, रात को ट्रेड को लॉग इन करना है आपको। मीन्स इफ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आफ्टर मार्केट आपको वो ट्रेड देखना है कि इसके अंदर मेरी क्या गलती हुई, ये ट्रेड को मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इफ आपको रीजन समझ में आ जाएगा तो एक जर्नल बना के रखना और उसके अंदर उसको नोट करना। ओके, तो उसके अंदर उसको नोट करना कि या दिस इज द मिस्टेक आई मेड, सो दैट्स व्हाई माय स्टॉप लॉस हैज बीन हिटेड। मेरा स्टॉप लॉस छोटा था कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था, तो इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और सीखने को मिलेगा गाइस। एंड इफ टारगेट हिट होता है तो खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, एंड स्टॉप लॉस हिटिंग, टारगेट हिटिंग इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। नो नीड टू बिकम हैप्पी आफ्टर हिटिंग द टारगेट। तो टारगेट हिट होने के बाद भी आपको एनालिसिस करना है, इसके अंदर मेरा टारगेट क्यों हिट हुआ, ये मैंने किस टाइप की ट्रेडिंग की थी, क्या एनालिसिस मेरा इसके अंदर वर्क कर गया, टारगेट इसके अंदर कैसे हिट हुआ, तो आपको ये भी एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा गाइस, आप ये मिस्टेक्स जो है स्टॉप लॉस हिट करने के वो नहीं करोगे, और टारगेट से आपको सीखने मिलेगा कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। मीन्स यू विल गेट टू नो व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 7th mistake. Not understanding the market. Yeah, this is the very true point. Not understanding the market. People what do? They just come, if they execute, level execute, they trade.
People just came. If reversal is coming, they just trade. It's not an issue. First you have to analyze what the trend of the market. It's in uptrend or it's in downtrend. If uptrend है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाना है, शॉर्ट डाउन ट्रेंड है तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाना है. आपको ओवरऑल प्रॉपर परफेक्ट एनालिसिस करना है. लोग क्या करते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, किसी के लेवल्स कॉपी करते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं. इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. इट्स गोइंग टू हार्म यू एंड इट्स गोइंग टू हार्म योर कैपिटल ऑल्सो. Okay, so let's talk about the eighth mistake. Overconfident. This is the very big mistake done by the newcomers. ओवर कॉन्फिडेंट आपको कभी नहीं होना. मार्केट में आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपको कभी नहीं होना है. इफ यू आर गोइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, देन आई गारंटी यू मार्केट इज गोइंग टू किक यू. ओके, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना. आपके प्रॉफिट्स होते हैं, एक प्रॉफिट हो गया, दो प्रॉफिट हो गया, तीन प्रॉफिट हो गया, चार प्रॉफिट हो गया, पूरा महीना प्रॉफिटेबल में चलोगे ना आप, फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है. इफ आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो व्हाट विल हैपन गाइज, लेट मी जस्ट टेल यू. इफ आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ओके, आपको आज 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कल 200 रुपीज़ का हुआ, परसों 300 रुपीज़ का हुआ. ओके, ऐसे करते करते आपको एक 15 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो गया, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ऑब्वियसली. तो आप क्या करोगे, आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे और क्वांटिटी आप कर दोगे उसको 1000 क्वांटिटी कर दोगे. तो गाइज कैन यू बिलीव मी, इफ ये जो आपके छोटे छोटे टारगेट हिट्स हुए 100 पॉइंट्स 100 क्वांटिटी के साथ, सो इफ ये जो आपने 1000 क्वांटिटी ओवर कॉन्फिडेंट के साथ बढ़ाई है, इफ इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपका 15 पॉइंट्स का, तो आपके 15,000 यहाँ पे ही लूज हो गए. ओके, इफ इसने 1000 क्वांटिटी से आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया 15 पॉइंट्स का, तो 15,000 का लॉस आपको इधर ही हो गया. मीन्स आपने जितना यहाँ पे अर्न किया 15 डेज में, उतना आपने एक ही दिन में लूज कर दिया. So it's not called as trading, it's called as gambling. So you don't have to do this mistake. Always be a confident. If आप यही 100 क्वांटिटी से पूरा महीना ट्रेड करते हैं तो मे बी आपका 20,000, 15,000, 30,000 कैपिटल गेन हो जाता, आपको उतना प्रॉफिट मिल जाता. लेकिन आपने क्या किया, आपने कमाया 10,000 और दिया मार्केट को 15,000, ओवरऑल आप 5,000 लॉस में हो. तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है. नेक्स्ट स्टेप है कीप स्मॉल स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ हैविंग फियर ऑफ लूजिंग. देखो गाइस, इफ आपको फियर ऑफ लूजिंग है, ट्रेडिंग छोड़ दो. आई एम टेलिंग यू, इफ आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हो, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर टारगेट एंड यू आर कीपिंग स्टॉप लॉस एज दिस, देन इट्स अ बिग मिस्टेक. ओके, आपको कभी भी स्टॉप लॉस रखना है एक स्विंग लो या स्विंग हाई के नीचे. इफ ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा, इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रेंड, ओके, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई. सो इफ जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है एट दिस पॉइंट, यू हैव टू कीप द स्टॉप लॉस. ओके, सो अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दोगे तो ये मार्केट थोड़ा सा भी नीचे रिवर्सल ले, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा. तो क्या फायदा, आपकी बार बार स्टॉप लॉस जाएगी. ये मिस्टेक से क्या होगा, आपने अगर 10 ट्रेड लिया ना तो 8 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और रिमेनिंग 2 ट्रेड आपको टारगेट अचीव होंगे, वो भी लकीली अचीव होंगे. सो इफ आप प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको कम से कम स्टॉप लॉस हिट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके टारगेट हिट्स होंगे. तो नेक्स्ट है कीपिंग डेली टारगेट्स. दिस इज ऑल्सो बिग मिस्टेक. आपको डेली टारगेट रखना नहीं है, आपको मंथली या वीकली टारगेट रखना है. ओके, डेली टारगेट नहीं रखना कि मैं डेली 1% अर्न करूंगा, डेली 0.5% अर्न करूंगा. इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. आपको मार्केट जितना दे रहा है उतना लेना है. आपके नसीब में होगा तो आपको 0.2 ही मिलेगा. इफ आपको ज़्यादा नसीब में रहेगा तो कभी कभी आपको 3%, 4% इतना भी मिल जाएगा. तो जितना मार्केट दे रहा है उतना ही आपको लेना है, आपको डेली टारगेट नहीं रखनी है. या यू कैन कीप मंथली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो. दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक डन बाय द न्यूबीज. आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपके जर्नल में इसमें नोट डाउन करके रखना है. इग्नोरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? फॉर एग्जांपल, दिस इज योर एंट्री, ओके, दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस. इन दिस केस 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और 4 रुपीज़ का टारगेट है. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है. तो इसमें क्या है, इसमें आपका 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और 8 रुपीज़ का टारगेट है.
Okay, and this is the second criteria. Okay guys, so I'm telling you, if you follow this first criteria you are going to be profitable. if आपकी accuracy 50% भी होगी तभी भी आप profitable हो, लेकिन इसके अंदर आपकी accuracy 80 to 90% भी होगी ना guys, you are going to be lose all the capital, you are going to be lose everything. Finally you are going to be a loser, you are going to be a losing trader, not a profitable trader. So आपको क्या करना है? So what's the you should do? आपको इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आपने ट्रेडिंग की और आपने पूरे महीने में 20 ट्रेड्स लिए, इन अ मंथ यू टुक 20 ट्रेड्स. ओके, उसमें से 10 ट्रेड से जो प्रॉफिट में गए और 10 ट्रेड से जो लॉस में गए, मीन स्टॉप लॉस हिट हुआ. ओके, सो जो और आपको इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने इसके अंदर फॉलो किया है. ओके, सो जो 10 ट्रेड्स दिए तो जिसमें आप स्टॉप लॉस दोगे वो 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दोगे, और जिसमें टारगेट अचीव करेंगे 2000 रुपीज़ का टारगेट अचीव करेंगे. ओके, सो ये आपका फर्स्ट 10 टारगेट्स हिट हुए और 10 स्टॉप लॉस हिट हुए. सो इसमें क्या हुआ, 10 इंटू 1000 कितना हुआ, 10,000 राइट. और इसमें 10 इंटू 2000 कितना हुआ, 20,000. सो 20,000 माइनस 10,000 10,000 आ गया राइट. सो आप ओवरऑल 10,000 प्रॉफिट में हो विद द एक्यूरेसी ऑफ 50%. ओके, इफ ये 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अर्न दिस मोर. ये आपका 10,000 का 20,000 15,000 ऐसा हो जाएगा. सो रिस्क रिवॉर्ड शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट क्राइटेरिया. इसको कभी भी अच्छा ही रखने का. मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2. इफ इससे कम है तो ट्रेड अवॉइड करने का. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, हैबिट्स ऑफ ब्लेमिंग द मार्केट. दिस इज द वेरी वर्स्ट हैबिट ऑफ द न्यू बिगनर्स. मार्केट को कभी ब्लेम मत करो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आपको पता है कि आपने ट्रेड लिया ना, मार्केट ने ट्रेड लिया, मार्केट उसके हिसाब से चल रहा है. आपको मालूम होना चाहिए मार्केट कैसा चलता है और मार्केट में कैसा ट्रेड लेना है. आप ट्रेड ले लोगे, दिन मार्केट वोलाटाइल था यार, मुझे लॉस हो गया यार, देखिए मैंने अप ट्रेंड लिया और मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया, कैसा मार्केट है यार, इससे नहीं चलने वाला. लाइफ आपको मालूम नहीं है, आप ट्रेड ले रहे हो, देन इट्स अ वेरी बैड हैबिट एक्चुअली. सो हैबिट ऑफ ब्लेमिंग द मार्केट कभी नहीं करना. खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. स्टॉप लॉस हिट हुआ, इवनिंग को जाओ, देखो स्टॉप लॉस की हिट हुआ, देन इम्प्रूव करो खुद. मार्केट को कभी ब्लेम नहीं करना है, मार्केट उसके हिसाब से चलता है एंड मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम. नेक्स्ट स्टेप है बिलीविंग टीवी एंकर. दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक पीपल्स डू, न्यू कमर्स डू. टीवी एंकर पे कभी बिलीव नहीं करना है, बिकॉज क्या है ना, ये काफ़ी बड़ा मैनिपुलेशन है. आई विल नॉट टेल हियर एक्चुअली, काफ़ी बड़ा मैनिपुलेशन है ये. इफ मेरे को टाइम मिलता है या मैं इस पर वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे कि कैसे मैनिपुलेशन होता है एंड ऑल, आई विल सेंड इट. बट डोंट बिलीव ऑन टीवी एंकर्स. ये कभी आपको प्रॉपर स्टॉक्स देते नहीं है. इसमें आपका स्टॉप लॉस मोस्ट क्राइटेरिया में हिट हो सकता है. ओके गाइस, सो डोंट बिलीव टीवी एंकर्स. बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ओन एनालिसिस. गेटिंग बोर्ड एंड टेक ट्रेड्स. आप लोग क्या करते हो, आपको ट्रेड नहीं मिला, आपको सेटअप पे ट्रेड नहीं आया तो आप जबरदस्ती कोई भी ट्रेड ले लेते हो. जरूरी नहीं है, इफ आपको ट्रेड नहीं मिलता नहीं मत ट्रेड कीजिए, सिस्टम बंद करके सो जाइए, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है आपको. इफ ट्रेड नहीं मिलता है तो मत कीजिए. नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग. ओके, अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, राइट दिस सेंटेंस दैट नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, वॉचिंग MTM. हाँ, दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक. आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कभी नहीं देखना है. इफ आपने ट्रेड लिया ना तो आपका एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा. टारगेट हिट होता है अच्छी बात, स्टॉप लॉस हिट है तभी भी अच्छी बात. इससे आपको सीखने मिलेगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा. ओके, सो PNL और MTM आपको कभी नहीं देखना है. इफ आफ्टर द मार्केट आपको NSE खुद आपके ईमेल पे MTM भेज देगा, आपको देखने की क्या जरूरत है, तभी देखना, वो प्रॉपर PNL रहेगा. आप जो PNL देखोगे आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो या 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो ये ब्रोकरेज वगैरह सब कट के आपके अकाउंट में आने वाला है. आपको 100 रुपीज़ पूरा थोड़ी ना मिलना है. तो आपको जो PNL देख रहे हो वो फेक PNL है. तो आपको जेन्युइन PNL देखना है जो आपको ईमेल ID पे आएगा एट द इवनिंग. अब ये आपने इसमें ब्रोकरेज टैक्स एंड ऑल सब कट के 70 या 75 रुपये बचेगा. तो आपको इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें आपको नहीं मिलने वाला जो आपका जेन्युइन PNL नहीं है ये गाइस. सो PNL आपको हमेशा एट द इवनिंग देखना है, अदरवाइज देखना ही नहीं है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मिस्टेक, ड्रीमिंग विथ इमेजिनरी प्रॉफिट्स. गाइस आप लोग क्या करते हो, एनालिसिस करते हो,
फॉर एग्जाम्पल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ये मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरे को कितना बड़ा प्रॉफिट होता था। इट्स नॉट अ ट्रेडिंग गाइस, इट्स इमेजिनरी। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ पे बाय करता हूँ, प्राइस देख यार 500 चली गई, मैं यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट कमाता था, 5-6 हज़ार का मुझे प्रॉफिट होता था। दिस इज द बिग मिस्टेक। आपको इमेजिन प्रॉफिट्स कभी नहीं करना, आपके प्रॉफिट्स आप कभी इमेजिन नहीं करने हैं। ओके, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आपने ट्रेड लिया है तो ही इमेजिन कीजिए, अदरवाइज डोंट इमेजिन कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता था। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। एवरेजिंग लॉसेस, कभी एवरेज नहीं करना आपके लॉसेस को। इफ आपने ट्रेड यहाँ पे लिया, कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे आ गया, कोई बात नहीं। इफ मार्केट नीचे आया है ना गाइस, तो उसके अंदर वीकनेस है, बेरिशनेस है, इसलिए वो नीचे आया है। आप यहाँ पे एवरेज करते हो तो वो वीक स्टॉक है तो और नीचे गिरता है, यहाँ पे एवरेज करते हो तो और नीचे गिरता है। तो आपको जो 100 रुपीज़ का लॉस होने वाला था वो यहाँ पे एवरेज किया आपने, यहाँ पे 2000 का हो गया, यहाँ पे एवरेज किया आपका 4000 का हो गया। तो आपने आपका जो ये जो लॉसेस है उसको इंक्रीज करने का रहता है एवरेजिंग करके। इस आपको एवरेज करना है तो आपको लॉस इंक्रीज करना है, तो डोंट डू दिस। पिरामिडिंग हमेशा करते जाइए। इफ आई नो, आई होप यू नो ऑल यू नो द व्हाट इज पिरामिडिंग। एवरेजिंग कभी करना नहीं है। ओके, आना है तो स्टॉक रिवर्सल लेके आएगा, अदरवाइज ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। एवरेज कभी नहीं करना है आपको, अदरवाइज एवरेज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करोगे गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, होल्डिंग लूजिंग ट्रेड्स विथ होप्स। आप लोग क्या करते हो गाइस, न्यू कमर्स अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप लोग एक रिवर्सल का वेट करते हो, एक होप में रहते हो यार ऊपर आ जाएगा, यार जब ये ब्रेक इवन पे आएगा तभी मैं इसमें से निकल जाऊंगा, यार ये नीचे नीचे जा रहा है ऊपर आ जाएगा, मैं वेट करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। आपको ये कभी नहीं करना, आपको एक स्टॉप लॉस रख देना है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, निकल जाओ, खत्म काम। आपको ऐसे होप में ही नहीं रहना है कि आपका प्राइस वापस ऊपर जाएगा, आपके ब्रेक इवन पे आएगा, वापस प्रॉफिट देगा। कभी होप नहीं करना, इससे आपको और ज़्यादा लॉस होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, सेलिंग विनिंग ट्रेड्स क्विकली। ये आपको कभी नहीं करना है। इफ आपका स्टॉप लॉस हिट होता है हो जाने दो, लेकिन इफ आपका आपके इसमें जा रहा है, आपके साइड में आपका ट्रेड जा रहा है, तो हमेशा उसको ट्रेल करते जाओ। आपका जो मार्केट दे रहा है वो लेते जाओ, एट द एंड लेते जाओ। मैं यूजुअली मैं 9:30 को ट्रेड करता हूँ, 9:30 को मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है ना गाइस, तो बिलीव मैं खुद उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं करता हूँ, उसको मार्केट खुद स्क्वेयर ऑफ करता है। 3:15 को मेरा ब्रोकर खुद स्क्वेयर ऑफ करता है, मैं तब तक उसमें से निकलता नहीं हूँ। क्यों निकलना है? वो प्रॉफिट ही दे रहा है, मेरे साइड में ही जा रहा है, तो उसमें से क्यों निकलना है? अगर वो मेरे खिलाफ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस उसको निकाल देगा, लेकिन इफ मेरे साइड में जा रहा है तो मेरे को टारगेट लेते जाना है, मेरे को पॉइंट्स लेते जाना है। ओके, इफ आप खुद निकल जाओगे ना तो इसमें क्या होगा, इफ आपका स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ का है तो आप लोग टारगेट 2 रुपीज़ लेके निकल जाओगे। क्या इसमें कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं हुआ आपको। इसमें से फिर क्या होता है गाइस, इफ आप रैली एंजॉय करते जाओगे तो 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट्स का रैली लेके जाओगे, मीन्स 1:5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया इसके अंदर। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। नेक्स्ट, चेंजिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कभी भी चेंज नहीं करना। इफ आपको नेक्स्ट लेवल फॉर्म होता है तभी ही आपको स्टॉप लॉस चेंज करना है, अदरवाइज स्टॉप लॉस कभी भी चेंज नहीं करना है। जो स्टॉप लॉस रखा है वही स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि इफ आपने जो भी पहला स्टॉप लॉस रखा था वो काफ़ी सोच समझ के रखा होगा, दैट्स वाई आपने वो स्टॉप लॉस रखा है, तो हमेशा उसको ही रहने दें। कीप मेंटल स्टॉप लॉस। मेंटल स्टॉप लॉस कभी नहीं रखना है, क्योंकि इफ आप मेंटल स्टॉप लॉस रखते हो, कोई एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो आपका स्टॉप लॉस क्या डबल स्टॉप लॉस खा जाएगी, ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो वहाँ पे वापस रिवर्स ले पाएगी। सो आपको हमेशा स्टॉप लॉस रखना है ताकि मार्केट प्राइस उस प्राइस पे आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और लॉस लेने से आप बच जाए। जब आप मेंटल स्टॉप लॉस रखते हो तो उसमें कोई उपयोग ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है, तो आप उसमें हमेशा उसको सिस्टम में रखें ताकि प्राइस उस प्राइस पे आए तो आप लोग हिट हो सके। क्या पता एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाए और आपको स्टॉप लॉस के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दे, क्या करोगे फिर उस टाइम? आपको एक प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको खुद से उसको निकालना पड़ेगा एकदम बड़े लॉस में। तो दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक ट्रेडर्स डू। नेक्स्ट, कीपिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। मार्केट से कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको, मेरे को मार्केट 1 रुपया देगा, आप 10 रुपया देगा। इफ आपका एनालिसिस सही है मार्केट आपको 1000 रुपया देगा, बिलीव मी। इफ मार्केट एनालिसिस सही है मार्केट आपको खुद पैसा देगा, खुद 1000 रुपया देगा। पेपर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है गाइस। इफ आप बिगनर हो फिर भी नहीं करना है। इफ आपको ट्रेडिंग करना है तो एक क्वांटिटी से करो, सिर्फ 1 क्वांटिटी से करो। ओके, सिर्फ 1 क्वांटिटी से ट्रेडिंग करो। इफ आपको ट्रेडिंग करना है, पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, इमोशंस नहीं होते। इफ इमोशंस नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में क्या मजा है गाइस? आप इफ 1 क्वांटिटी से भी ट्रेडिंग करोगे ना, इमोशंस रहेंगे, आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो इफ आप प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे। नेक्स्ट है रैंडम एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल्स। आपको किसी के कॉल्स पे या ट्रेड्स पे कभी करना नहीं। ये लेवल है अबाउट 100 यू हैव टू बाय, योर टारगेट इज 110, योर स्टॉप लॉस इज 105।
इसमें आपके खुद की क्या मेहनत है? खुद की कुछ मेहनत नहीं, आपको दूसरे ने कॉल दिया, दूसरे बंदे ने कॉल दिया, आपने वो ट्रेड कर दिया, क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा तो अभी भी आपको नहीं होने वाला हो। उसके एनालिसिस पे आप वर्क कर रहे हो। खुद पे एनालिसिस पे एक बार वर्क करके देखो, एंड इफ़ वो आपका एनालिसिस सही निकलता है ना गाइस, बिलीव मी, आपको समझेगा व्हाट इज़ द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होता है आपको तभी समझेगा। आप दूसरे के एनालिसिस पे कभी ट्रेड मत कीजिए, खुद के एनालिसिस पे ट्रेड कीजिए, चलेगा। लॉसेस फेस हो रहे फिर भी चलेगा, टाइम लग रहा है, इट्स ओके, बट you are going to come back again. Believe in yourself. Self belief is the most important thing in the trading career. Next step is taking too much leverage. If आप बिगनर हो ना गाइस, लेवरेज ये बात मार्केट में है, यही भूल जाओ। जितना कैपिटल है उस पर ही ट्रेड कीजिए, लेवरेज की बात ही मत कीजिए, लेवरेज कभी मत लीजिए। ये आपका जो प्रॉफिट है ना, ये डबल कर देता है। जब आपको लॉस होने वाला है तो ये आपको 100 कर देगा, 100 रुपीज़ का लॉस होने वाला रहेगा तो आपको 1000 का लॉस करवा देगा। और आपका जो कैपिटल ड्रॉ डाउन है ना, वो 1% होने वाला होता तो वो 10% हो जाएगा। ओके, या ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उतने ही बड़े बड़े करवा देता है, लेकिन इफ आप एक्यूरेसी और इफ आप न्यू ट्रेडर हो तो प्लीज़ लेवरेज मत लीजिए, क्योंकि आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लूज कर दोगे आपका स्टार्टिंग में। सो डोंट डू दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज नॉट मेकिंग जर्नल। हमेशा जर्नल बनाइए। आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्यों हिट हुआ, मैंने किस लेवल पे ये स्टॉक लिया था, क्यों लिया था। ऑलवेज नोट ऑल दिस थिंग्स। दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमेशा इसको नोट डाउन करिए और आपको फिर समझ जाएगा कि या खुद में आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा कि यार मैंने ये जर्नल बना रहा हूँ, तब से मुझ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है और मुझे खुद में प्रॉफिट हुआ है। ये जितने स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, खुद ने किए हुए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस। 27 पॉइंट, कैरीज लॉट ऑफ इमोशन इन ट्रेड। हमेशा इमोशन फ्री ट्रेड करना है। फियर को भूल जाओ, फियर को भूल जाओ, फियर को कुछ याद ही मत रखो। इमोशंस के साथ ट्रेड कभी नहीं करना। इफ इमोशन है तो फिर ट्रेड मत कीजिएगा। इस पेपर ट्रेडिंग में कैसे आपको विदाउट इमोशंस रहते हैं, ये ऑब्वियसली थोड़े फार तो इमोशंस रहने वाले, लेकिन ज़्यादा इमोशंस है कि आप सिस्टम से ट्रेड लेने के बाद हिल ही नहीं पा रहे हो, तो वो ट्रेड आपको कोई काम का नहीं, वो ट्रेडिंग या फिर कुछ काम की नहीं। सो इमोशंस कभी मत रखना ट्रेडिंग में। नेक्स्ट स्टेप, फियर बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड। फियर क्यों होता है गाइस आपको? इफ आपका एनालिसिस प्रॉपर है, इफ आपने सब कुछ एनालिसिस प्रॉपर करके रखा है, तो आपको फियर होने की उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मेरा एनालिसिस सही जाने वाला है, मैंने एक परफेक्ट एनालिसिस किया है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। इफ फियर है तो फिर आपको कुछ ना कुछ गलती की है। ओके, दैट्स मच फॉर द डे गाइस। इफ़ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, क्योंकि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मैंने बताए गए। सो गाइज, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।